Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 9, chapter 8, natural disaster. This is the chapter name. Okay student, in this chapter on previous day we had studied about different natural disaster and about natural disaster. What is natural disaster? And student, now we have to study about earthquakes. Student, topic for today is earthquakes. Student, in this topic we will study what is earthquakes, what is the cause of earthquakes, and what is the efforts of the earthquake, and protection from earthquakes. These are the topics that come in this topic. Student, firstly we have to study earthquakes. In Hindi, earthquakes means bhukam, sudden shaking in the earth. Earthquake means sudden shaking in the earth. And student, earthquakes is a very common natural disaster for mankind. Student, it is sudden shaking of earth's surface, in the earth's surface. Okay, the point under the ground where earthquakes begins, it is called focus. The point under the ground where uh, earthquakes begins, it is called focus. It is called focus. स्टूडेंट, अभी हम पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक्स के बारे में. अर्थक्वेक्स होता क्या है? तो स्टूडेंट, अर्थक्वेक्स का मतलब होता है सडन वाइब्रेशन, सडन शेकिंग इन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी अर्थ की सरफेस में अचानक से होने वाले कंपन को ही अर्थक्वेक्स कहते हैं. और ये जो है बहुत ही कॉमन नेचुरल डिजास्टर से है. एंड स्टूडेंट, आई होप all of you familiar, all of you you have experience of earthquake, because before very little time ago there is a strong earthquake in our area. I hope in 2015 there is an earthquake in Nepal, Kathmandu, and also there shaking feel in our area. Student, आपको पता है कि बहुत कुछ टाइम पहले 2015 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था. कहाँ? नेपाल में. और उसका हमने झटका, उसकी शेकिंग फील की गए थे हमारे भी एरिया में, मतलब वो था. तो हम सभी इससे फैमिलियर हैं. ये बहुत ही मोस्ट कॉमन क्या है, नेचुरल डिजास्टर में से एक है. ओके स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट, अर्थ की ग्राउंड में, आई मीन जहां से अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड वेयर द बिगनिंग्स ऑफ द अर्थक्वेक, इट इज कॉल्ड फोकस. यानी जहां पे कंपन होता है. तो फर्स्टली आई वांट टू टेल यू what is earthquake, how earthquake happen, earthquake होता क्या है, what is the cause of occurring earthquake. तो student, in previous chapter, I mean in 8th chapter, we had studied the layers of the earth, surface of the earth. These are three main layers of the earth, Sima, Sial and Nipe. I mean crust, core and mantle. Crust, core, mantle. So you can suppose that now I have 3 books, and you can suppose that this is crust, mantle and core. And student, these are the 3 plates in the surface of the ground, under the surface of the ground. And when one plate
वाइब्रेट अबव अदर प्लेट। देखिए होता क्या है कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से खिसकता है, दूर हटता है, अब ये होता क्यों है? तो इसका मेन कॉज जो होता है, जब आपको पता है कि जो ये प्लेट है वो तो जैसे क्रस्ट है, तो क्रस्ट सबसे अपर लेयर है, आपको बताया गया है। तो जहां पे कंपन होता है, जस्ट लाइक यहां से यहां, इसका कहते हैं ना कि उसका सेंटर, इसको एपिसेंटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ उस सेंटर को फोकस कहा जाता है। दिस इज द फोकस। ओके स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट, the point on the earth's surface straight above the focus is called epicenter. And point, ये point है, यहां क्या हुआ, यहां का प्लेट खिसका, ठीक है। तो ये क्या है? The point under the ground where an earthquake begins. अर्थ के अंदर का फोकस क्या है? अर्थ के अंदर का वो पॉइंट है जहां से क्या हुआ था, जहां पे अर्थक्वेक शुरू हुआ था, तो इसको कहते हैं फोकस। एंड स्टूडेंट, द पॉइंट ऑन द अर्थ, देखिए स्ट्रेट अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब देखिए एपिसेंटर, तो एपिसेंटर और फोकस में क्या डिफरेंस है? ये अंडर द अर्थ सरफेस है, अर्थ के अंदर जहां से क्या हुआ, अर्थक्वेक बिगिन हुआ, उसको फोकस कहा जाता है। ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर जहां, और फोकस के ऊपर एपिसेंटर, जहां से क्या हुआ, अर्थक्वेक शुरू हुआ, उसको एपिसेंटर कहा जाता है। I hope you understand it well. And student, if you have any problem, you can ask me. Okay, student? Some earthquakes are so weak. कुछ earthquake जो होते हैं बहुत weak होते हैं. And they barely felt. और वो मतलब महसूस नहीं होते हैं. कभी कभी बहुत मतलब रेयर केस में वो क्या होते हैं, महसूस होते हैं, बहुत हल्के, मतलब सबको नहीं पता चलता है। बहुत टाइम ऐसे होता है क्योंकि वो क्या होता है, बहुत वीक होते हैं, ठीक है। एंड अदर्स आर शो वायलेंट, शो स्ट्रॉन्ग। कुछ ऐसे भूकंप होते हैं, कुछ ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। एंड कॉज द एक्सटेंसिव डैमेज समटाइम्स, और इनके कारण क्या होता है, डैमेज होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। जैसे आपने 2015 में देखा था, पूरा काठमांडू क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यू टू द अर्थक्वेक। तो क्या था, एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था। ओके स्टूडेंट, आफ्टर अ बिग अर्थक्वेक, यानी एक जब बड़ा भूकंप आता है, एक बड़ा अर्थक्वेक आता है, tremors may occur for next some hours, next some days. और कभी कभी क्या होता है, जैसे 2015 में अगर आप फील किए होंगे, तो क्या होता था कि जब भी झटका आता था, फर्स्ट टाइम डे में आया था, 25 अप्रैल को आया था, मुझे अच्छे से याद है। आई होप कि टाइमिंग था वही आपको 11:50 के अबाउट टाइम था। तो उसकी कुछ देर बाद तक, कुछ घंटों तक ऐसे महसूस हो रहा था कि बार बार वाइब्रेशन हो रहा है, बार बार शेकिंग हो रहा है। तो ऐसा नहीं था कि अगर बार बार होता तो सब बिल्डिंग्स वगैरह सब गिर जाते, तो ऐसा नहीं था। तो होता क्या है कि इसका अफेक्ट
में जो होता है, जब कोई बिग अर्थक्वेक आता है, कोई स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आता है, तो उसका जो इफेक्ट होता है आफ्टर सम आवर्स, आफ्टर सम डेज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड आफ्टर शॉक्स. दिस इज कॉल्ड आफ्टर शॉक्स. इसको क्या कहते हैं? आफ्टर शॉक्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक is measured using instrument is called seismograph. Is called seismograph. It means seismograph एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं? अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, इसके स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाउ वी हैव टू स्टडी मेजरिंग अर्थक्वेक. Measuring earthquake. यानी earthquakes को कैसे मेजर किया? How to we measure earthquake? Student, the earthquake are seismic waves. It is a earthquake. It is also called seismic wave. Are recorded by an instrument known as seismograph. Earthquake या जो seismic जो wave है can measure using an instrument called seismograph. इसको seismograph का यूज करके मेजर किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट, the magnitude of an earthquake is measured on Richter scale. और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है. ओके स्टूडेंट, एंड द नंबर ऑन दिस स्केल रेंज फ्रॉम 1 to 10. अब देखिए 1 to 10. 2015 में जो अर्थक्वेक आया था, ओके, उसका मेजरमेंट कितना था? 7.5. ठीक है. V4 considered and moderate. The mean, those of the above 6 are considered safer. And 6 से ऊपर जो होता है, above the 6 जो होता है, वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है. तो स्टूडेंट, this is the measuring of earthquake. ठीक है. And I again tell you earthquake measured with the instrument known as seismograph, and so it is also called seismic waves, and it is measured on the Richter scale. Okay. Student, now we have to study effects of an earthquake. Okay, effects of an earthquake. What is the effect of an earthquake? The student, you already know that it is there is a various effect of an earthquake. It can uproot trees and damage buildings, towers, and destroy the telephones lines. This is the effect of the earthquake, and it can also loss of property and life. इससे क्या होता है? जान माल की बड़े पैमाने पे क्षति होती है. अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? ट्रीज अपरूट हो जाते हैं. इसके अलावा क्या होता है? बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय, ध्वस्त हो गए. आपने देखा था 2015 में जब अर्थक्वेक आया था काठमांडू में, तो काठमांडू के मोस्ट ऑफ जो बिल्डिंग्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे. ठीक है. And the cause of the electric wire gate snap, resulting in the short circuit of fire. Breaking of the dams can result in the flood, and very often people buried in the debris and die.
होता क्या है, जब अर्थक्वेक आता है तो चूंकि क्या होता है, देयर इज अ वाइब्रेशन इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, और ड्यू टू दिस वाइब्रेशन सबसे पहले तो क्या होता है, टेलीफोन लाइंस का जो केबल होता है खत्म, कुछ आफ्टर फ्यू आवर्स फ्यू डे टेलीफोन लाइन का केबल्स कनेक्शन नहीं हो पाता है। इसके अलावा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह में वाइब्रेशन होता है, और ड्यू टू दिस वाइब्रेशन देयर इज अ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है। कभी कभी इससे क्या होता है, काफी हैवी, मतलब हैवी पैमाने पे, काफी बड़े पैमाने पे क्या होती है, आग लग जाती है। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स के जो कनेक्शन होते हैं वो टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैम्स टूट जाते हैं, और डैम्स के टूटने से फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग, जब ये अबव होता है 6 से, तो क्या होता है कि बड़े बड़े ब्यूरेट गड्ढे, दरार पड़